لرن آن لائن ود فیضان خان میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ شناخت کے مصنف، خوش فکر و خوش خیال شاعر رفعت شیدا صدیقی کا نام محتاج تعارف نہیں ہے۔ ان کی شعری خدمات 40 برسوں پر محیط ہے۔ شہر کے ادبی پروگراموں میں ان کا اہم کردار رہتا ہے۔ وہ اچھی شاعری اور سلجھی گفتگو کرتے ہیں۔ پیش ہے ان سے ہوئی دلچسپ گفتگو۔ ناظرین محترم اور سامعین باوقار، حاضر ہے رضوان فاروقی ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں، اور بہت ہی مرنجا مرن شخصیت شہر ادب کے ہر لذیذ شاعر جناب رفعت شیدا صدیقی صاحب آپ کے روبرو ہیں۔ ان کا استقبال ہے لرن آن لائن ود فیضان خان میں۔ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ ہیرے پنے پخراج جن پہ حالات کی گرد یا ہماری بے حسی کی گرد پڑ گئی تھی، اسے ہٹانا ہی ہمارا مقصد ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا کہا جائے، بلکہ جو سونا ہے اسی کو سونا کہا جائے۔ اور عقل مندوں کا یہ شیوا بھی نہیں ہے کہ وہ چلتی ہوئی چیز کے اوپر اپنا وقت ضائع کریں یا قلم کی سیاہی صرف کریں، بلکہ ہر وہ چیز جس پہ کام ہونا چاہیے اسی پہ کام کرنا چاہیے۔ مقام مسرت ہے کہ محترم رفعت شیدا صدیقی صاحب آج مجھے میسر آ گئے۔ میں لرن آن لائن میں جہاں ان کا استقبال کرتا ہوں، وہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت اچھا لمحہ ہے کہ ابھی حال ہی میں آپ کی کتاب آئی ہے جی، جس کا نام غالباً شناخت ہے۔ جی اسی شناخت کے لیے ہم لوگ گاؤں سے شہر اور شہر سے در شہر گھومتے پھرتے ہیں۔ شیدا بھائی نے بھی سفر کیا، یعنی کہ یہ مولوی گنج ان کا قیام تھا۔ مولوی گنج سے نکل کے وزیر گنج گئے، وزیر گنج سے پہلے یہ وزیر باغ، یہ دہلی میں رہے، بامبے میں رہے، اور اس کے بعد سفر کر کے میرے خیال لاہور اور سعودی عرب میں بہت رہے۔ سعودی عرب میں تو مقامات مقدسہ پہ بہت وقت انہوں نے اچھا وقت گزارا، اور وہاں بچشم خود انہوں نے وہ مناظر دیکھے جس کے لیے پوری دنیا کے مسلمان یہ کوشش کرتے ہیں، خواہاں رہتے ہیں کہ کاش ہم مڑ کے وہاں پہنچ جائیں۔ ان کا سفر یہیں پہ تمام نہیں ہوا، بلکہ یہ پاکستان گئے اور کئی بار بار گئے۔ وہاں بھی ان کے اعزاز میں نشستیں ہوئیں، مشاعرے ہوئے، لیکن شیدا بھائی کی گردن میں خم رہا۔ یعنی ان کے پیش نظر یہ بات رہی جناب ظفر شہیدی کی کہ انکساری تمہیں ایک دن قد و قامت دے گی، انکساری تمہیں ایک دن قد و قامت دے گی، ہاں مگر شرط ہے آنکھوں میں مروت رکھنا۔ تو ان کے یہاں انکسار بھی ہے، اخلاص بھی ہے، اور آنکھوں میں مروت بھی ہے۔ اس لیے ان کی ترقی کے آگے کبھی کوئی روڑا نہیں بن سکا۔ ہم پھر سے آپ کے روبرو ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتاب اتنی تاخیر سے آپ کیوں لائے؟ ہمارے محترم رضوان صاحب نے ایک عرصہ دراز سے اس بات کی کوشش کی کہ میں اس کتاب کو جلد از جلد منظر عام پر لاؤں۔ بہت ہی انہوں نے مجھے تحریک دی اس سلسلے میں نے اس کا ذکر بھی اپنے مضمون میں کیا ہے، اور وہ کتاب کے اندر درج ہے۔ تو یہ بس یہ ہماری اس پر لاپرواہی کہا جا سکتا ہے اس بات کو، کہ جس کے تحت وہ اب تک کتاب شائع نہیں ہو سکی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ جب جس کا وقت ہوتا ہے اس چیز کا، جی بالکل درست، وہ اپنے وقت پر ہی وہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں کچھ وقت زیادہ مل گیا، وہ کتاب جمع کر دی اردو اکیڈمی میں، وہاں سے پاس ہو گئی۔ اس کے بعد طباعت کے بعد پھر اس کی اشاعت ہوئی، اس کی رونمائی ہوئی، جی اور 2 مشترکہ تنظیموں نے مل کر اس کا اجرا کیا سینٹ روز پبلک اسکول میں۔ ہمارے رضوان صاحب نے اس کی نظامت بھی فرمائی، اور فیضان صاحب نے اس کو پکچرائز بھی کیا، اور اس کو یعنی کور کیا اپنے کیمرے میں قید کیا۔ اس کی ایک جھلکی بھی میں نے دیکھی تھی، ایک جھلک انہوں نے دکھائی ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا کتاب کا۔ کتاب میں وہ تمام چیزیں ہیں، وہ مضامین، خاص طور سے میں ان کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ جن حضرات نے میرے لیے مضامین لکھے۔ بہت بڑی شخصیتیں ہیں وہ، لیکن انہوں نے اس خاکسار کو اس ذرے، حالانکہ ذرہ تو ذرہ ہی ہوتا ہے۔ بہرحال میری تمام تر نیک خواہشات ان سب لوگوں کے لیے، اور بہت مشکور ہوں کہ جن کے توفیل میں یہ کتاب منظر عام پر آ سکی۔ اور کیا کہوں اس سلسلے میں،
शरद भाई आपने बहुत जो अभी शायरी की हर ज़माने में जी चौंकाया है आपने अपनी शायरी से, यानी आपने कोई दावा नहीं बड़ा किया, लेकिन आपकी शायरी जो है वो दलील है इस बात की कि वो शायरी बड़ी है। जैसे आपने कहा कि बड़ी नुमाइशी दुनिया है सामने रहिए, ये शेर हम सब पे मुंतबक है नाजरीन, कि बड़ी नुमाइशी दुनिया है सामने रहिए, नज़र से दूर हुआ जो वो दिल से दूर हुआ। तो इस तरह की शायरी आप कैसे इतनी आसान ज़बान में इतनी अच्छी शायरी कर लेते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल ये एक मुशाहिदा भी है जी और तजुर्बा भी है कि वो लोग कि जो पर्दे के पीछे से कोशिशें करते हैं जी वो अपनी उम्रें तमाम कर देते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि उनको कुछ हासिल नहीं हो पाता है उतना जो कि जिसके वो हकदार हैं, मिल नहीं पाता। लेकिन उन लोगों को बहुत कुछ मिल जाता है कि जो मंजर आम पर होते हैं, जी। सामने होते हैं, फ्रंट पेज की तरह से होते हैं, उनको बहुत कुछ मिल जाता है, इसलिए कि लोग उनको देखते हैं। यानी आदमी को हर हाल में एक्टिव रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, मुतहर्रिक रहना चाहिए और सामने रहना चाहिए। जी जी आपको एक मिसाल देते हैं, मशायरों में अक्सर देखा गया है जी कि नौवारिद शोरा इकराम जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, जो एंट्री करते हैं अभी मुशायरों में, जी वो उन लोगों को पहले पढ़वा दिया जाता है। ये सिलसिला एक अरसे दराज से चल रहा है और ये इसकी रिवायत बन गई। लेकिन मैं देखता हूँ कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट पे वही लोग रहते हैं, फायदे में वही लोग रहते बिल्कुल सही कह रहे हैं। फोटोग्राफर फोटो भी उनका खींचता है। हैं। सबसे बड़ी गैदरिंग उनको मिलती है, जी लोग उनके शेर को सुनते हैं और दूसरी बात उनको गैदरिंग भी ज़्यादा मिलती है, पिक्चराइज भी ज़्यादा होते हैं और लोग उनको सुनते भी हैं और उसके बाद फिर लिखा भी उनके बारे में जाता है। जी और वो लोग कि जो असातिज़ा हैं वो अपनी मसरदें संभाले हुए, अपनी दस्तारें संभाले हुए बैठे रहते हैं और कहते हैं कि सर अभी आपका मकाम नहीं है, आप तो अपनी मंजिल पर पढ़ेंगे। और उसके बाद जब उनकी मंजिल, उनका मकाम आता है तो वहाँ पर चंद वो लोग रह जाते हैं जी, कि जी। जो दरी उठाने वाले हैं। बहुत सच बात कही शैला भाई ने। जब दरी चांदनी समेटने का वक्त आता है, कुर्सियाँ उठ रही होती हैं, लोग बेजार होते हैं और बिल्कुल थक चुके होते हैं, तब वो जो हमारे अदब के वाकई हीरे हैं उनसे कहा जाता है कि हज़रत आप आएँ और कलाम सुनाएं। तो कलाम तो वो सुनाते हैं, दिल निकाल के रखते हैं, लेकिन जो मुशायरे का दिल है यानी आवाम वही गायब हो चुकी होती है। सही बात कही आपने। वो खुद बुझ जाते हैं, जी बैठे बैठे वो खुद भी बुझ जाते हैं और वो तमाम लोग गा चुके होते हैं कि जो जिनको उनका कलाम सुनना चाहिए। तो इसलिए उनको कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं जानता, वो अपनी कोई शनाख्त नहीं बना पाते। लेकिन वो लोग शनाख्त बना लेते हैं कि जो अभी अभी नौवारिद हैं, आए हैं चंद दिनों से, लेकिन वो दिलों पर अपनी छाप बन छोड़ जाते हैं। जी जी शैला भाई, आपने दुनिया का मुशाहिदा किया, आप घूमे, लेकिन जो लखनऊ में रमक है, जो शायरी की चमक है, जो ज़बान व बयान की नुज़रत है, क्या वो और जगहों भी पाई आपने? देखिए है, अदब तो है। पाकिस्तान में मैंने देखा बहुत ही अच्छा अदब है वहाँ पर, और जो सलासत, फसाहत, बलागत, जो शीरीनी लखनऊ के अंदर मिलेगी आपको ज़बान की, वो शायद आपको कराची में भी नहीं मिलेगी, ये लाहौर में भी नहीं मिलेगी। उनकी शायरी में तनतना है, जोश हाँ, है। जोश है, वलवला है और हकायक पर मबनी उनकी शायरी भी है। जी जी इसमें कोई शक नहीं, तेवर हैं उनकी शायरी के। और यही वजह है कि वो वहाँ के जो शायर आए हैं मंजर-ए-आम पर, जैसे मसलन एक शायरा है नौशी गिलानी, जो कि इस वक्त सान फ्रांसिस्को में है। परवीन शाकिर का इंतकाल हो चुका है। इसी तरह से और भी कई शायरा, इधर कई नौजवान भी आ गए हैं, तहजीब हाफी वगैरह। हाँ, ये लोग हाँ तहजीब वगैरह ये आए हैं, इनकी भी शायरी का एक नया रुख सामने आया है। जी जी तो लोग उसको पसंद कर रहे हैं और वाकई आज के वक्त की ज़रूरत भी वही है, तो इस तरह की शायरी की जाए। तो लेकिन महसूस ये हुआ कि जो चाशनी अदब के हवाले से लखनऊ की शायरी में मिलेगी तो वो आपको कहीं और शायद ना मिल सके। जी जी आपके उस्ताद जनाब तस्नीम फारूकी और इम्तियाज़ अहमद बाबू, दो उस्ताद यके बाद दीगरे रहे हैं। इम्तियाज़ साहब को तो मुझे शेर नहीं याद है, शायर वो अच्छे थे, पुख्ताकार थे, सियासत में भी वो कामयाब हुए। लेकिन जनाब तस्नीम फारूकी बहुत मरंज शख्सियत थी, करवट करवट शबीर थे, उनकी चाल ढाल से लखनवीयत टपक। उनके शेर जो आपको मुतासिर कर गए हों सुनाइए, और फिर आपकी शायरी हम सुनना चाहेंगे। तस्नीम फारूकी साहब हमारे उस्ताद मोहतरम, मुझे जब मैं इंडिया वापस आया 98 में सऊदी अरब से, जी उससे पहले जब मैं गया था यहाँ से तकरीबन 85 में, उससे
उससे पहले इम्तियाज़ हुसैन अदीब साहब जो कि उस वक्त साबिक MLA थे, बहुत ही अच्छी शख्सियत, बहुत ही नफीस शख्सियत, बहुत अच्छे शायर थे। जी जी तो मैंने बहरहाल उनसे बहुत कुछ सीखा और शायरी को समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझे बड़ी मतलब शद्दस्त शफ़क़त के साथ उन्होंने बहुत कुछ समझाया सिखाया, लेकिन उसके बाद मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था, मैं चला गया सऊदी अरब। जी जी। फिर वहाँ से जब किस मैं साल में वापसी हुई आपकी? 98 में मैं वापस हुआ। मैं यहाँ से 84 में गया था, लेकिन 98 में वापस आया। 98 में वापस आया तो उसके बाद से जी जनाब तस्नीम फारूकी साहब के साथ मैं वाबस्ता हुआ। और वही तस्नीम साहब का वो गोल्डन पीरियड होगा जब वो मुशायरों में भी कामयाब थे। जी और शायरी तो उनकी कामयाब थी ही। उनकी सफ़ेद तलाबजा में मैं शामिल हो गया। जी तो तस्नीम साहब भी वाकई जैसे कि अभी आपने बताया कि बड़ी मरन शख्स है, बहुत ही नफीस आदमी और शायर। वो देखने से भी शायर लगते थे और कहीं जी। बैठते थे तो भी उनकी जो गुफ्तगू होती थी, गुफ्तगू वो बहुत ही महज़्ज़ब और शायराना हुआ करती थी। तस्लीम साहब के कुछ शेर मैं आपको सुना रहा हूँ कि अता फरमाएं। मुलाजा फरमाएं कि वो कहते थे कि यूं ही जिस तरह टकराने से यूं ही जिस तरह टकराने से शीशे टूट जाते हैं, आहा, यूं ही जिस तरह टकराने से शीशे टूट जाते हैं। शीशे टूट जाते हैं, यहाँ लम्हात में सदियों के रिश्ते टूट जाते हैं। वाह 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 वाह। यूं ही जिस तरह टकराने से शीशे टूट जाते हैं, यहाँ लम्हात में सदियों के रिश्ते टूट जाते हैं। अंधेरी रात में खुद के सहारे से गुजर जाओ, आहा, अंधेरी रात में खुद के सहारे से गुजर जाओ, सहारों का भरोसा क्या, सहारे सहारे टूट जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या अच्छा शेर है। फिर पढ़िए। सहारों का भरोसा क्या, आहा, अंधेरी रात में खुद के सहारे से गुजर जाओ, जी सहारों का भरोसा क्या, सहारे टूट जाते हैं। और कहते हैं कि बहुत बहुत ये शेर तो शोहरा आफाक हुआ कि बहुत मुश्किल है नाजुक जिस्म वालों सबको खुश रखना, आहा, ये भी बहुत- प्रैक्टिकल शेर है। वाह, वाह, बहुत वाह, मुश्किल है नाजुक जिस्म वाले नाजुक जिस्म वालों सबको खुश रखना। सबको खुश रखना, कई हाथों में रहने से खिलौने टूट जाते हैं। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत खूब। बहुत मुश्किल है नाजुक जिस्म वालों सबको खुश रखना, कई हाथों में रहने से खिलौने खिलौने टूट टूट जाते जाते हैं। शहरा भाई, यहीं पर ख्याल आता है कि मैं आपसे ये भी दरियाफ्त करूं कि वो बड़ा अच्छा दौर था जिसमें जो इनके मासरीन थे मोहतरम तस्नीम फारूकी साहब के, चाहे वह हयात साहब हों, जी। हयात वारसी, चाहे वो जनाब सईद अख्तर निज़ामी हों, और चाहे वो मैकश यूसुफ़ी हों, या जनाब नसीम अख्तर सिद्दीकी साहब हों, सब में कुछ ना कुछ खूबियाँ और सिफात थी। या कमर राय बरेलवी साहब, राय बरेलवी का लायका ज़रूर था, लेकिन लखनऊ में उन्होंने रहे भी और लखनवियत भी उनके शायरी में जहाँ तहाँ मिलती है। और ये शेर तो वाकई उनको अमर कर गया कि मैं तो शायर हूँ, मेरी बात कहाँ मानोगे। हैं। ये कमर राय बरेलवी साहब का शेर कि मैं तो शायर हूँ, मेरी मेरी कहाँ- बात कहाँ मानोगे, तुमने झुटला दिए दुनिया में पैगंबर के। हाँ, 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 वाह, इसी तरह की अच्छी शायरी सईद साहब, नसीम साहब और दीगर लोगों के यहाँ है। तो हम चाहते हैं कि वो आपके ज़बान मुबारक से हमारे नाज़रीन तक पहुँच जाए, ताकि वो पूरा एक माहौल सामने आ जाए। सईद भाई के यहाँ कई शायर अच्छे हैं, हाँ, याद रखे जाने के लायक। वो चाहने वालों में दूरी भी ज़रूरी है, क्या तुमने नहीं देखा दरिया के किनारों को। ये शेर नसीम साहब का याद है, या वो पढ़ते थे जिसका चरबा भी लोगों ने किया इस शहर में। ये अमीर शहर ने कहा मुझे खुदा कहा करो, अमीर शहर ने कहा मुझे खुदा कहा करो, मैं टूट कर बिखर गया मगर खुदा खुदा कहा। कहा। वाह, ये वाह। नसीम अख्तर का शेर है। क्या कहने का था, वाह, मैं टूट कर बिखर गया मगर खुदा कहा। बहुत अच्छा। मुझे याद इस वक्त नहीं आ कोई रहा। बात नहीं, सईद भाई के एक दो शेर सईद साहब का शेर जो है, सईद अख्तर निज़ामी। सईद साहब कहते हैं कि हम पे हालातो हवादिस का असर ऐसा न था, ऐसा न था, आहा, वाह, हम पे हालातो हवादिस का असर ऐसा न था, ऐसा न था, जर्द तो पहले भी था चेहरा मगर मगर ऐसा न था। वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। हम बहुत पे खूब हालातो है। हवादिस का असर ऐसा न था, ऐसा न था, जर्द तो पहले भी था चेहरा मगर मगर ऐसा। ऐसा न था। वाह, सईद भाई कई शेर और भी हैं, जंबील वगैरह। हम्म, जैसे सईद भाई ने ये भी शेर कहा कि ये जो एक पल है ये सोना है,
یہ جو ایک پل ہے یہ سونا ہے کہ پھر اس کے بعد کیا خبر وقت کی زنبیل سے بالو نکلے. یا اسی مضمون کو یوں پرویا انہوں نے کہ وقت نے ایک بار میرے در پر بھی دی تھی صدا. وقت نے ایک بار میرے در پر بھی دی تھی صدا. اختر اس کے بعد ساری عمر سناٹا رہا. اس میں بتانا وہ یہ چاہتے ہیں کہ قدرت ہر ایک کو موقع دیتی, ان کو ہی موقع دیا, انہوں نے بھی باہر کا مشاعرہ پڑھا, لیکن پھر مشاعروں کے دروازے بند ہوئے ان کی سستی یا ان کے اپنوں کی چستی کی وجہ سے. میرا صدیقی صاحب ابھی آپ نے اپنے معاصرین بلکہ تسنیم فاروقی صاحب کے معاصرین کے اشعار سنائے, اور یہ ہمارے ناظرین تک ایک اچھی بات پہنچی کہ وہ دور کیسا تھا, شاعری کیسی ہوتی تھی. اس پہ اگر گفتگو کی جائے تو شاہدہ بھائی ابھی گفتگو شروع کریں اور صبح تک گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن مقصد یہ ہے کہ ان کے اشعار سنے جائیں. تو ہم پھر آپ سے ملتمس ہیں کہ آپ اپنے اشعار سنائیں شناخت کے حوالے سے, یا وہ جو آپ شاعری آپ کی شناخت بنی. بہت سے ایسے شعر ہیں, چراغ پہ تمام شعر کہے گئے. سراج لکھنوی نے کہا کہ میں نے جو روشن کیے تھے جل رہے ہیں وہ چراغ, میں نے جو روشن کیے تھے جل رہے ہیں وہ چراغ, اور میرے پاس مانگے کا اجالا بھی نہیں. یہ لکھنؤ کے نمائندہ شاعر تھے. جناب نسیم اختر صدیقی اپنے دور کے استاد تھے, انہوں نے اس کو رد تو نہیں کیا لیکن اپنی بات اپنے شعر میں کہی. انہوں نے کہا کسی سے مانگ کے ہم روشنی نہیں لاتے, کسی سے مانگ کے ہم روشنی نہیں لاتے, ہمارے گھر میں ہمارا چراغ جلتا ہے. لیکن شہزادہ صدیقی صاحب بھی مانے نہیں, انہوں نے اپنی بات کہی. وہ بات کیا تھی؟ وہ حضرت علی کے حوالے سے تھی. وہ شعر آفاقی شعر بن گیا اور خانقاہوں میں اور اہل دل میں بہت سنایا جاتا ہے, بہت پسند کیا جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں شہزادہ بھائی کی زبان مبارک سے سنا جائے. بہت شکریہ جناب رضوان صاحب. اس سے پہلے آپ نے جناب سعید اختر نظامی صاحب کی کسی شعر کے لیے کہا تھا, مجھے یاد آیا ایک شعر میں چاہتا ہوں کہ وہ جی عطا آپ کی خدمت میں پیش کروں. ملاحظہ فرمائیں کہ سعید بھائی کا ایک شعر تھا کہ ہماری شہرتیں رسوائیوں کے پاؤں رکھتی ہیں. ہاں ہاں, کیا اچھی زبان ہے. واہ واہ واہ. ہماری شہرتیں رسوائیوں کے پاؤں رکھتی ہیں, غزل کے ساتھ کتنے ہی گھروں تک نام جاتا ہے. واہ 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 واہ, بہت اچھا. غزل کے ساتھ کتنے ہی گھروں تک نام جاتا ہے. کیا کہنے, کیا ہماری شہرتیں رسوائیوں کے پاؤں رکھتی ہیں. اور اب میں وہ جو شعر آپ نے بتایا خانقاہی نظام سے متعلق چراغ, ملاحظہ فرمائے کہ وہ جس کو چاہے اسی کا چراغ جلتا ہے. وہ جس کو چاہے اسی کا چراغ جلتا ہے. وہ جس کو چاہے اسی کا چراغ جلتا ہے. واہ, کب اس کے آگے کسی کا چراغ, بے شک بے شک. واہ 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 واہ. کب اس کے آگے کسی کا چراغ جلتا ہے. کب اس کے آگے کسی کا چراغ جلتا ہے. اور حلیمہ جب سے محمد کو تم نے گود لیا, صلی اللہ علیہ وسلم, حلیمہ جب سے محمد کو تم نے گود لیا, تمہارے گھر میں تو گھی کا چراغ جلتا ہے. بہت عمدہ. واہ 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 واہ. تمہارے گھر میں تو گھی کا چراغ جلتا ہے. اور یہ شعر بطور خاص دیکھیے گا کہ ضیاء اہل طریقت کا سلسلہ ہے علی. ضیاء اہل طریقت کا سلسلہ ہے علی, علی کے گھر سے ولی کا چراغ. واہ 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 واہ. ضیاء اہل طریقت کا سلسلہ ہے علی, واہ واہ واہ. علی کے گھر سے ولی کا چراغ جلتا ہے. بہت عمدہ شہزادہ بھائی, بہت عمدہ. پھر پڑھ دیجیے ایک بار. ضیاء اہل طریقت کا سلسلہ ہے علی, واہ. علی کے گھر سے ولی کا چراغ جلتا ہے. اور یہ روشنائی بھی شیدا ہے روشنی کی طرح. یہ روشنائی بھی شیدا ہے روشنی کی طرح, قلم سے نعت نبی کا چراغ جلتا ہے. واہ واہ واہ. قلم سے نعت نبی کا چراغ. اب شہزادہ بھائی جب آپ نے یہ اشعار سنا دیے جس میں روح بھی ہے, زندگی بھی ہے اور حقیقتیں بھی مضمر ہیں, تو کیوں نہ وہ شعر بھی آپ سے سن لیا جائے جو خانقاہوں میں بہت سنایا جاتا ہے. خانقاہوں کا مطلب یہ نہیں ہے ناظرین کہ صرف خانقاہوں میں یا کلاه فضیلت پہننے والوں میں سنایا جاتا ہے, بلکہ جہاں جہاں اہل دل ہیں, اہل علم ہیں اور حقیقت پسند ہیں, وہ اس شعر کو پسند کرتے ہیں کہ جو میں کدے کی روایتوں کے مزاج داں ہیں ان سے پوچھو. یہ شعر آپ ہی سنائیں. سماعت فرمائیں کہ تم اپنے شہر وفا میں قائم محبتوں کا نظام رکھنا. واہ, کیا سجا مصرع ہے. تم اپنے شہر وفا میں قائم محبتوں کا نظام محبتوں کا نظام رکھنا. کوئی تمہیں لاکھ ورغلائے تم اپنے مقصد سے کام رکھنا. واہ واہ واہ. کوئی تمہیں لاکھ ورغلائے تم اپنے مقصد سے کام تم رکھنا. اپنے مقصد سے کام رکھنا. کیا اچھا مطلب ہے شہزادہ. کوئی تمہیں, بہت شکریہ, کوئی تمہیں لاکھ ورغلائے تم اپنے مقصد سے تم کام اپنے رکھنا. مقصد سے کام رکھنا.
तमाम दुनिया का हुस्न तेरे हसीन पैकर में ढल गया। हाँ, तमाम दुनिया का हुस्न तेरे हसीन पैकर में फैजान साहब, जी वाह, तमाम वाह, दुनिया का हुस्न तेरे हाँ, हसीन पैकर में ढल गया है। मेरे लिए हो गया है मुश्किल तेरे सरापे का नाम रखना। बहुत मेरे लिए हो गया है मुश्किल तेरे सरापे का नाम रखना। और अब वो शेर बतौर खास जिसके लिए हुक्म हुआ है, मुलाजा फरमाए कि जो मैं कदे की रिवायतों के मिजाजदां हैं, ये उनसे पूछो हाँ, क्या हैं, ये उनसे पूछो कहाँ पे लाजिम है बादानोशी, कहाँ मुनासिब है जाम रखना। वाह 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 जो वाह, मैं वाह, कदे की रिवायतों के मिजाजदां हैं, ये उनसे पूछो कहाँ पे लाजिम है बादानोशी, कहाँ मुनासिब है जाम रखना। बहुत उम्दा, बहुत वाह वाह वाह। और कुछ अशार सुनाइए मुतफर्रिक। समात फरमाए के निकलिए जब भी घर से, या हफीजो कह लिया। बहुत अच्छा मशवरा है, वाह। ये आज के दौर के और जो दौर हंगामी है, जी इमरजेंसी दौर, यूं भी इस्लामी और ये हिकमत है इसमें, अल्लाह इस्लामी के नाम से हिकमत के निकला साथ साथ है। जी और आज के जो हालात हैं वबा है। जी समात फरमाए के निकलिए जब भी घर से, या हफीजो कह लिया कीजिए। पहुंचिए घर तो पहले शुक्र का सदा। वाह वाह निकलिए जब भी घर से, जी या हफीजो कह लिया कीजिए। पहुंचिए घर तो पहले शुक्र का सदा अदा कीजिए। और छठी हिस्स एक रहबर की तरह जो साथ रहती है। हाँ हाँ हाँ, वाह। छठी हिस्स एक रहबर की तरह जो सिक्स साथ सेंस। रहती है। जी एक रहबर की तरह जो साथ रहती है, कभी उस हमनशी से मशवरा भी कर लिया। बहुत उम्दा, बहुत अच्छी बात, वाह 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 वाह। छठी हिस्स एक रहबर की तरह जो साथ रहती है, कभी उस नफसी से मशवरा भी कभी करिए। उस हमनशी से मशवरा भी कर लिया कीजिए। और समाप्त फरमाएं कि हम अपने शहर से जब दूर जाने लगते हैं, वाह। हम अपने शहर से जब दूर जाने जब लगते हैं, दूर जाने लगते हैं, तमाम रास्ते वापस बुलाने लगते हैं। क्या कहने, क्या कहने, वाह हम वाह। अपने शहर से जब दूर जाने लगते हैं, तमाम रास्ते वापस बुलाने लगते हैं। और बस अब निगाह से ओझल न तुम कभी होना, तरह तरह के ख्यालात आने लगते हैं। वाह 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 वाह। बस अब निगाह से ओझल न तुम कभी होना, तरह तरह के ख्यालात आने लगते हैं। तरह तरह के ख्यालात आने लगते हैं। और समाज फरमाए कि जैसे कि हमारे रिजवान साहब ने इस शेर को भी काफ़ी मशहूर किया कि समाज फरमाए कि और एक शेर आपका बहुत प्रैक्टिकल है, मुख्तार नामे भी। हमने अक्सर होता है सबके कि नाम, वालिदैन सब मोहब्बत में अपने बच्चों के नाम लिख देते हैं, वही बच्चे उनको बाहर बैठा लेते हैं जिंदगी में। जी जी मुलाजा फरमाए कि हमने सबके नाम जब मुख्तार नामे लिख दिए, हमने सबके नाम जब मुख्तार नामे हमने लिखे, सबके नाम जब मुख्तार नामे लिख दिए, तब हमें मजबूर और बेबस जिंदगी से डर लगा। वाह वाह वाह। तब हमें किस मजबूर और तरह इसमें बेबस हकीकत भी है, कर्ब भी है। जिंदगी से डर लगा। ऐ जमाने मुझको तेरी बेहिसी से डर लगा। वाह वाह, यही दौर है वाकई, बहुत होगा। और मुतफर्रिक अशार में जी इनायत फरमाए। कि जो राह रस्म मोहब्बत को आम करते हैं, जो राह रस्म मोहब्बत को जो आम राह करते हैं। रस्म मोहब्बत को आम करते हैं, ये लोग वो हैं जो पहले सलाम करते हैं। क्या कहने भाई, क्या कहने शरा भाई, जिंदाबाद। वाह जो वाह राह वाह। रस्म मोहब्बत को आम करते हैं, ये लोग वो हैं जो ये पहले लोग सलाम वो हैं करते जो हैं। पहले सलाम करते हैं। और वो सख्त बात भी कहते हैं नर्म लहजे में। क्या अच्छी बात आपने कही। इसी बात को फिरोज निजामी ने कहा। हाँ मतलब ये रद्द नहीं बल्कि बता रहा हूँ कि सब बड़ों के ख्यालात मिलते हैं। उन्होंने कहा कि बड़ा खुलूस था कुदरत के कारखाने में। हाँ ये रस्म वो है कि जब तक रही ज़माने में बड़ा खुलूस था कुदरत के कारखाने में। वाह। यानी कहीं ना कहीं इस रस्म में कमी आई है। शाहिदा भाई ने उसी बात को किस कदर निखार के कहा, किस तरीके से कहा। आपका फिर इस्तकबाल बहुत बहुत है, शुक्रिया। आपके अशार अवाम के रूबरू। जो रस्म राह मोहब्बत को आम करते हैं, वाह वाह वाह। जो रस्म राह मोहब्बत को आम करते हैं, ये लोग वो हैं जो पहले सलाम करते हैं। ये लोग वो हैं जो पहले सलाम करते हैं। वो सख्त बात भी कहते हैं नर्म लहजे में। ये खालिस लखनऊ बहुत वो सख्त बात भी कहते हैं नर्म नर्म लहजे लहजे में। में। नफीस लोग शगुफ्ता कलाम करते बहुत उम्दा, बहुत खूब। वाह 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 हैं। वो वाह। सख्त इसमें बात हिदायत भी भी है और कहते हैं तरबियत नर्म भी लहजे है। में। बहुत खूब बेशक। नफीस लोग शगुफ्ता कलाम दिल पड़ दी एक बात। अच्छा शेर है। जो राह रस्म मोहब्बत को आम करते हैं, ये लोग वो हैं जो पहले सलाम करते हैं। बहुत वो सख्त बात भी कहते हैं नर्म लहजे में।
नफीस लोग शगुफ्ता कलाम करते हैं। क्या कहें भाई शैदा भाई। और जैसे कि मैंने हमारी जो किताब आई है मंजर पर शनाख्त, इसमें शैदा भाई कितने पेजेस हैं आपकी उसके किताब हवाले से शनाख्त में 240 पेज है। और इसमें क्या कुछ है? इसके अंदर गज़लें हैं, इसके अंदर 2 हम शरीफ हैं, एक नाज शरीफ है, एक हमस है, और उसके अलावा नज़्में वगैरह भी हैं? नज़्में हमारे तकरीबन 11-12 नज़्में हैं और क़तात हैं, समझा। जी। तो ये मुख्तलिफ मौज़ूआत अभी तो इस तरह का सरमाया इतना आपके पास होगा, कई किताबें आ सकती हैं। जी इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिशन जो होगा या दूसरी जो, यानी अभी थैले में माल बहुत है और फहमी नज़र रखे हुए हैं। फहमी बहुत अच्छे शागिर्द हैं नाजरीन। होता यह है कि हम ज़िंदगी में उर्दू जो है या अदब राशा ज़रा हाथों में महफूज नहीं है। हम सब बूढ़े होंगे वक्त के साथ और बिलाखिर इस दुनिया से जाना है, तो हमें चाहिए कि हम अपने बाद की जो पौध है उसको तैयार कर दें। ये काम जिन लोगों ने किया वो शायर होने के अलावा बड़े लोग हैं, हमारी नज़र में काबिल क़द्र हैं। उनमें से एक शख्सियत ज़फ़र शहदा सिद्दीकी साहब की है। इन्होंने खामोशी से हर दौर में, मतलब छोटे लोग नहीं तो खैर छोटी उम्र के हैं, जवान हैं, तवाना है, देर तक ये सफ़र करेंगे, लेकिन हमने उन लोगों को भी देखा है खामोशी से इनके घर जाते हुए कि जो चल नहीं पा रहे हैं, इनसे ज़्यादा सिन रसीदा हैं, उनकी उम्र है, और वो इस्लाह खामोशी से इनसे लेते थे। इन्होंने कभी नहीं कहा अगर मैं चाहूँ तो वो शेर पढ़ दूँ लोग पहचान जाएंगे, लेकिन वो भी मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ ये बताना है कि अदब की खिदमत करने वाले जो होते हैं वो कहीं कमरे में रहते हैं, पर्दों के पीछे रहते हैं, काम उनका मकसद होता है, काम जो करने वाले हैं वो कर जाते हैं। तो शैदा भाई हमेशा ये काम करते रहे, और उसका आपके सामने नमूना और मिसाल ये है कि जनाब फहमी ये जो आज वक्त की ज़रूरत है, यानी जब हम संजीदगी से उकता जाते हैं, जब हम गमों से बोझल हो जाते हैं, जब हालात से परेशान होते हैं, तो ज़रूरत होती है कि गज़ल के साथ में हज़्म जो उसके बिल्कुल शाना बशाना चलती है वो हम सुने, हंसें, कहे लगाएं और अपने गमों को एक लम्हे के लिए या कुछ वक्त के लिए भूल जाएं। ऐसी शायरी करते हैं जनाब फहमी। अभी मैं इनसे भी अपने उस्ताद के बारे में, इनके तासुरात क्या हैं, यानी क्या मामलात हैं, कैसे रवैये हैं, पूछूंगा। शख्सियत के बारे में वो लोग ज़्यादा जानते हैं जो शख्सियत के करीब रहते हैं। हम शैदा भाई के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बता सकते हैं, लेकिन उनके शागिर्दों की उनके बारे में क्या राय है ये भी हम आपसे पूछेंगे। इससे कबल हम चाहते हैं जो आपका सिलसिला था शायरी का। जी मैं ये कह रहा था कि ये हमारी किताब जो शनाख्त है, जी, तो इस किताब में जैसे कि अब ये हमारे रिजवान अहमद फारूकी साहब ने बताया, बहुत खूबसूरत मजमून भी इनका है और दूसरे मुबस्सिरीन इकराम के मज़ामीन इसके अंदर शामिल हैं। सबसे कमज़ोर में रही है नहीं, सबसे खूबसूरत मजमून आपका है, इसलिए कि इब्तिदा में आपने लिखा और वो सब कुछ लिख दिया कि जिसकी इस किताब को ज़रूरत थी। हालांकि बहुत शुक्रिया आपकी ज़रा नवाजी का कि इस खाकसार को आपने बहुत सारी अपनी मोहब्बतों से नवाजा आपकी नवाजिश के आपने मौका दिया। और हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इस शेर इसमें इसके लिए मैंने एक शेर लिखा था जी, कि मैं अपनी फ़िक्र सुखन कामयाब समझूंगा, मैं अपनी फ़िक्र सुखन कामयाब समझूंगा, जो एक शेर भी मेरी शनाख्त बन जाए। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा भाई, बहुत मैं उम्दा। अपनी फ़िक्र सुखन कामयाब समझूंगा, जो एक शेर भी मेरी शनाख्त बन जाए। और बस इसी तरह से 2-3 शेर और मैं मुतफरिक पेश कर रहा हूँ और उसके बाद फिर आप फहमी साहब समात फरमाएंगे कि जुस्तजू है कि वो इंसान को लिए फिरती है। जुस्तजू है कि वो इंसान को लिए फिरती जुस्तजू है कि वो इंसान को लिए फिरती है, कभी मरीख की जानिब, कभी ज़ुहरा की तरफ। वाह 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 वाह, ये वो शेर जो मैंने भी कभी नहीं सुना। जुस्तजू है वाह 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 कि जो इंसान को लिए फिरती है, वाह, कभी मरीख की जानिब, कभी ज़ुहरा की क्या तरफ। अच्छी लफ्ज़ियात का आपने इसमें इस्तेमाल जब किया है। हुआ वाह 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 वाह, फिर पढ़िए सारा भाई। इसका मतलब है हाँ। कि जब हुआ हुक्म चलो चल दिए उक़बा की तरफ। हाँ, वाह, जब हुआ हुक्म चलो चलो चल दिए उक़बा की तरफ, वाह, हमने तो मुड़ के भी देखा नहीं दुनिया की तरफ। बहुत उम्दा, वाह 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 जब हुआ हुक्म चलो चल दिए उक़बा की तरफ, वाह हमने तो मुड़ के भी देखा नहीं दुनिया की तरफ। वाह जुस्तजू है कि जो इंसान को लिए फिरती है, वाह कभी मरीख की जानिब, कभी ज़ुहरा की तरफ। वाह 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 वाह, ये दो लफ्ज़ आपने मरीख और ज़ुहरा का इस्तेमाल कर दिया जो हमारे यहाँ बहुत सी नई नस्ल जानती ही नहीं है। और मुख्तलिफ शेर के हवाले से कि आज जिन चिरागों से बज़ में उजाला है, आज जिन चिरागों से बज़ में उजाला है, आज जिन चिरागों से बज़ में उजाला है, वो चिराग हैं जिनको आंधियों ने पाला है। बहुत उम्दा, वाह
वाह वाह वाह वाह, आज जिन चरागों से, जैसे फहमी है हमारे और भी दूसरे नौजवान बहुत उम्दा। शायर जो इस महफिल को रौनक बख्शे हुए हैं, आज जिन चरागों से बज़्म उजाला है, वो चराग हैं जिनको आंधियों ने पाला है। वाह। और एक शेर मुलाजा फरमाएं कि उजालों की तालीम वो दे रहे हैं, जालों की तालीम वो दे रहे हैं, अंधेरों को जो खुद हैं ओढ़े बिछाए। वाह। फिर पढ़ दिए शेर, वाह वाह। उजालों की तालीम वो दे रहे हैं, आज के दौर पे यही सब तो है। अंधेरों को जो खुद हैं ओढ़े बिछाए, वाह। अंधेरों को जो खुद हैं ओढ़े बिछाए। और भी रहे पेश नज़र, ये जरूरी है कि कि उक़बा भी रहे पेश नज़र, दिल को दुनिया से लगाने में कोई आग नहीं। बहुत उम्दा, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ये जरूरी है कि उक़बा भी रहे पेश नज़र, दिल को दुनिया से लगाने। बहुत जनाब फहमी साहब, आप मोहतरम रफ़त शहदा सिद्दीकी साहब के शागिर्द हैं, जैसे मैं अपने नाज़रीन को बता चुका। तो आपके तासुरात बहुत ज़रूरी हैं कि उस्ताद मिस्ल वालिद के होता है, और कहीं कहीं वालिद से भी अजमत बढ़ी हुई होती है, चाहे वो शायरी का उस्ताद हो या किसी और दर्जे का। यानी प्राइमरी से लेके जो आला दर्जे की तालीम है, वहाँ तक कोई ना कोई उस्ताद होता है, और सब उस्ताद होते हैं। किसी ने एक लफ्ज़ भी सिखाया तो वो उस्ताद है। तो जो लोग ये जज्बा रखते हैं वही दुनिया में तरक्की करते हैं। आप सादतमंद हैं, आपने इनसे बहुत कुछ हासिल किया है, और मैं देख रहा हूँ कि आपने बहुत कम वक्त में तरक्की की। क्या इसमें कोई उस्ताद का भी हाथ है, यानी आपकी तरक्की में, आपकी तरबियत में? हमारा जितनी भी तरक्की, जितनी भी शायरी है, सारा उस्ताद को क्रेडिट सब उस्ताद को हमारे जाता है। बहुत। क्या हमारे उस्ताद ने ही सब कुछ हमारे लिए किया। और ये नहीं शायरी को ही लेकर नहीं, और भी दुनियावी चीज़ हैं। जी जी। हालांकि मेरे कदम कदम पे रहनुमा रहते हैं ये। हमारे वालिद साहब नहीं है, लेकिन हम वालिद साहब का दर्जा हमारे उस्ताद रखते हैं। बेशक। तो हम उनको हमेशा अपने वालिद की तरह मानते हैं, बहुत। और हमेशा ही मानते रहेंगे। खुश बिल्कुल रहिए। बिल्कुल बिल्कुल मानना चाहिए। जो आज मेरे इनमें आपने क्या खूबियाँ पाई, और शायरों की आपने देखा सब में कोई खूबी खराबी होती है, इनमें आपने खूबियाँ क्या देखी तो उस्ताद? शायद पता ना, उस्ताद को हमने एक बार यूट्यूब पे देखा था। अच्छा। हमको पता नहीं था क्या बहुत हमारे करीब नहीं है। अच्छा, ये नहीं मालूम था कि आपके करीब कहीं रहते हैं? जी, हमने यूट्यूब पे देखा था। उस्ताद की एक नज्म है वीडियोग्राफी वाली, बहुत कामयाब नज्म है वो, तो ये पढ़ते नहीं है, मतलब वो मुशायरामान नज्म है। जी वो हमने पहली बार सुनी थी उस्ताद की। तो नज्म ने बहुत मुतासिर किया। हालांकि वो सुनने में एक नज्म है, लेकिन उसमें एक बहुत मैसेज गया, पूरा पैगाम है। और पूरा आज पैगाम आज हमारे दौर का वो अलमिया है, PhD है, कि मतलब दूल्हा से पहले जो है वो दुल्हन को देख दिया जाता है, या ये कि खाना इस तरह खाते हैं जैसे जानवर खाया करते थे माजी में। जी, तो ये हमारे दौर की तरक्की है, या ये कहा जाए तनज़्ज़ुली है? तो ये आज भी हो रहा है उसी हमारे। नज्म को सुन के आप इनसे इम्प्रेस हुए, मुतासिर हुए, जी। और फिर इनको आपने तलाश किया। जी, तलाश किया, और हमने किसी शायर की तरफ ना देखकर उस्ताद की नहीं, क्या तरफ, जरूरत है? हाँ, उस्ताद की तरफ हमने देखा, और जो उस्ताद से रिक्वेस्ट करी कि हमको शागिर्द बना ले, जो उस्ताद ने एक्सेप्ट करके हमें जो है इज्जत बख्शी। नहीं, अच्छा लगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई शाहिदा भाई, ऐसे मजबूत लोग कहाँ मिलेंगे? मतलब शायरी में मजबूत और जहनी तौर से मजबूत, वो जहनी दिवालियापन नहीं है जो शागिर्दों को चूसने का मिजाज होता है या इस्तेमाल करने का, वो हमारे शाहिदा भाई में नहीं है। तो ये जो बड़प्पन है, यही तो आदमी को बड़ा बनाता है। आपका इंतखाब काबिल कदर है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह जी। और कुछ कहेंगे आप इनके मुताबिक? नहीं, उस्ताद का जो एक शेर है, क्या? वो अभी उस्ताद ने पढ़ा भी था, जी। जो जिसने हमको और मुतासिर किया, जो हमने सुना था कि तुम अपने शहर वफा में कायम मोहब्बतों का निज़ाम रखना। जी जी जी। कोई तुमको लाख बरगलाए, कोई तुम्हें अपने लाख मकसद से काम रखना। बहुत उम्दा, ये वाह वाह वाह। बहुत अच्छा शेर लगा। इसमें भी एक तबलीग है, एक पैगाम है। जी, इसमें भी एक नौजवान नस्ल के लिए बहुत अच्छी बात है। शाहिदा भाई, आप नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे? जैसे इसी मतले में आपके पैगाम है कि तुम अपने शहर वफा में कायम, मोहब्बतों का निज़ाम रखना, कोई तुम्हें लाख बरगलाए, अपने मकसद से काम रखना, इसे पूरा पैगाम है। इसी तरह की पैगाम की पूरी शायरी इनकी है, दफ्तर का दफ्तर है। तो आप अपने नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हैं? सिर्फ फहमी नहीं बल्कि तमाम दुनिया। रिजवान भाई बहुत शुक्रिया। और शायद आपको याद हो जी कि जब आप हमारी इस किताब पर तबसरा लिख रहे थे, जी जी तो उसमें उस वक्त जब आपने ये नज़्म, ये गज़ल देखी, जी। तुम अपने शहर वफा में कायम, मोहब्बतों का निज़ाम रखना, कोई तुम्हें लाख बरगलाए, तुम अपने मकसद से काम रखना। तो इस गज़ल पर आपने जो बहुत ख़ास मुझे तबसरा बहुत अच्छा लगा, जी वो ये था कि आपने कहा कि मैं इसी गज़ल पर बात को अपनी तमाम कर सकता हूँ, बेशक ये गज़ल पूरी ऐसी और है, मैं सजीव बिल्कुल गज़ल। कुछ ना लिखते हुए सब बस ये लिख दूँ कि भाई ये गज़ल है उसको मजमूए में, तो वो काफ़ी है। जी जी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आपकी वो बात मेरे लिए सनत की हैसियत रखती, और मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत उससे
मुझे हौसला मिला। उसके बाद से जो मैंने शायरी की तो मैंने उसी अंदाज की जी। और बेहतर शायरी करने की उस गज़ल से मैं बहुत मुतासिर हुआ। मैंने कहा अगर हम कुछ ना पढ़ते पूरी किताब हाँ, मुसवदा आप- आपका, बिल्कुल। तो वो गज़ल हमारे लिए काफ़ी थी लिखने के बिल्कुल, लिए। आपने और आप भी अगर सब दरिया बुर्द कर दें खुदा न हाँ, खास्ता, यही कहा आपने। तो ये एक ही गज़ल जिंदा रखने, लोग तो एक शेर से जिंदा रहते हैं और आपकी पूरी गज़ल ऐसी है कि वो सब तस्बीह के दानों की तरह एक दूसरे से वाबस्ता है। अच्छा, ये इतनी सच्चाई है इस बारे में जी। कि मैंने अगर इसको किसी मिनिस्ट्री में कहीं पर पढ़ा या पुलिस डिपार्टमेंट में कहीं पर पढ़ा, समझा, जहाँ पर डीएम वगैरह थे और दूसरे बड़े-बड़े अफसरान अफसरान होते हैं, मौजूद जी, थे, तो उन लोगों ने भी उसको बहुत पसंद किया। उन लोगों ने भी बहुत जी, पसंद जी, जी। किया। आज जो मेयर है दिनेश शर्मा, समझा, इनके सामने मैंने उस गज़ल को पढ़ा तो मुझसे दिनेश शर्मा साहब भी एक महफिल में थे, उस वक्त मैंने ये गज़ल पढ़ी, हम अपने शायर वफा में कहा। तो मुझसे जब वो एक किसी तकरीब में मिले तो क्या उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे आपका नाम तो याद नहीं रहा, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो गज़ल जो आपने उस दिन सुनाई थी और शायद अकील चौधरी के फंक्शन में सुनाई थी, वो गज़ल जिसमें आपने कहा था कि तुम अपने मकसद से काम रखना, वो गज़ल मुझे चाहिए, समझ हाँ, वो बात उनको अपील कर गई। समझा। जी। तो दिनेश शर्मा हालांकि लखनऊ में 10 साल मेयर रहे, उसके बाद हाँ। अब वो डिप्टी यानी वजीर हैं, वजीर आजम, वजीर आला हैं, डिप्टी वजीर आला हैं यहाँ के लखनऊ के। तो वो ऐसी शख्सियतें जहाँ पर होती हैं, उन लोगों ने भी पसंद किया। ये सिर्फ वो लोग नहीं कि अदब के लोग हैं, बल्कि अदब से जो अलग से हैं, जो हमारे मैनेजमेंट में लोग हैं, वो लोग भी इसको पसंद कर रहे थे। जी, तो जी। ये एक बड़ी बात थी कि आपने एक राह दिखाई और इतने कॉन्फिडेंस से उस बात को कहा कि वही बात अव्वल और आखिर हो गई। नहीं, और कहीं तमाम किसी लोगों ने- महफिल में आप पढ़ेंगे तो वो गज़ल आबू देगी जरूर। जी। वो ऐसी शायरी। तो अब ये है कि अच्छा, दूसरी बात, जैसे कि अब क्या मैसेज के बारे में आपके जी साथ जी, नई जवाब- नस्ल के लिए पैगाम आपका। पैगाम तो यही है कि मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करे कि हमारे फहमी जैसे नौजवान इस फील्ड में आए जी जी। और जितने ही महज़ब उतने शरीफ नफ्स हों कि जो आवाम को, जो अदब को, जो माशरे को अच्छा अदब दे सकें, अच्छी तहजीब दे सकें, अच्छे इस्लाह कर सकें उनकी, चाहे वो नज़्म में कहें, नस्र में कहें, या गज़ल में कहें, या फिर हज़्ल में कहें। जी जी। या मैंने देखा कि फहमीन जो है आप बेहतरीन हाजिर के साथ में इनके नातिया शायरी भी बहुत खूबसूरत है बहुत उम्दा है। और उसमें अकीदत है। जी जी। और तीसरी बात ये कि भाई एक सच्चे मुसलमान के हैसियत से इनके अंदर एक जज्बा है जी जी। कि इनके फहमी में अंदर खास बात मैंने देखी कि शुरुआत शायरी पेश नहीं। करते हैं, हाँ। बनावट नहीं और परफॉर्मेंस। अच्छा मुतासिर परफॉर्मेंस कुल है और शुरुआत नहीं है, ये बस काम रखते हैं और काम की ही बात करते हैं। बहुत तो मैं चाहता हूँ कि इनके जैसे ही लोग फील्ड में आए और वो अदब को और सराहें, नवाजें। बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया शायरा भाई। हम फिर इंशाल्लाह आपके यहाँ हाजिर होंगे, आपके रूबरू आएंगे, इंशाल्लाह। आपकी खिदमत में आएंगे बहुत शुक्रिया। और बहुत कुछ जानेंगे माजी के हवाले से, और जो दुनिया आपने देखी है इंशाल्लाह। उस पर गुफ्तगू मुझे करना है। खुदा हाफिज़। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।